जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिनसे आप सब जिन्हें जानते हैं, ये वो इंसान है जो कि ईमानदार होने की वजह से बदनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Beautiful book by Tarek Sahab, which I greatly enjoyed reading during last 3 days. After reading 3 chapters, if you ask me to sum up my feelings, then I would like to use 4 lines of an Urdu poet who said, किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौक़े सफ़र ऐसा एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला. And I see no chance of this book having any impact on these people. And persuade them to rethink their course of action. No possibility. Why no possibility? The question is why. You know, scientifically speaking, the most inactive and inert organ in human body is what? Human mind, brain. Most inert organ. It refuses to work unless it is faced with challenges or crisis. Necessity is the mother of invention. जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इंसान दिमाग लगाता है. ये मैं बहुत सीरियस बात पे आ रहा हूँ. क्यों मैंने ये बात कही? जिस सोसाइटी के बारे में आपने किताब लिखी है, उस सोसाइटी ने 10वीं से, आज हम 21वीं सेंचुरी में हैं, उस सोसाइटी ने 10वीं सेंचुरी से, since 10th century, after the Ashari movement, they have imposed restriction on using brain. हम बहुत आसानी से कहते थे, after Baghdad, Mongol invasion of Baghdad, the doors of Ijtihad were closed. What is Ijtihad? Ijtihad is ratiocination. Ijtihad is using your brain. लेकिन ये मंगोल इन्वेजन के बाद नहीं हुआ. ये बिल्कुल गलत है कि मंगोल इन्वेजन के बाद इज्तिहाद के दरवाजे बंद हुए. बिल्कुल गलत. ये अशरी मूवमेंट के बाद इज्तिहाद के दरवाजे बंद हुए. और अशरी मूवमेंट 9th 10th सेंचुरी का मूवमेंट, जहां जो रैशनलिस्ट स्कूल था इस्लाम का, जिसको मोतजिला कहते थे, आज उनकी कोई किताब अवेलेबल नहीं है. हमें कैसे पता चलता है उनके बारे में? हमें उनके बारे में पता चलता है फ्रॉम द बुक्स ऑफ देयर क्रिटिक्स. Every one of them was physically lynched and their books were burnt. Imam Ghazali ne, he died in 1010 and he writes in his book Ahyaul Ulum, आप बस्तियों की बस्तियां निकल जाइए, आपको कोई मुसलमान डॉक्टर नहीं मिलता. He raises this question, then himself answers it. Why don't you find a Muslim doctor, despite the fact that in the law which is labeled as Islamic law, the evidence of a non-Muslim doctor is not admissible in the court. If the country is being governed according to what they say, the Islamic law and Sharia.
then the evidence of a non-Muslim doctor is not admissible. Still, you don't find a single doctor. You go from place to place and you won't find a doctor. And then he himself answers it. Why you don't find a Muslim doctor? Everyone, Ashari movement I referred to. Abul Hasan Ashari declared that उससे पहले का जो पीरियड है अबाउट 250-300 years, वो कौन सा पीरियड है? फ्रॉम 8th century to 10th century, जहाँ this society was so vibrant intellectually, although generally it is written that the famous institution Baitul Hikmah in Baghdad, which translated, and in fact those translations are responsible for the preservation of the works of Aristotle, Plato and everybody, whole Greek knowledge. But rarely somebody mentions that the first major work they undertook was translation of Surya Siddhant, which was Surya Siddhant was the book which was taken, 5 books were taken by a Pandit named Kanak from Sindh to Baghdad. And Mansoor was fascinated when some parts of this book were read to him. And he ordered Fazari to translate this Sanskrit book into Arabic. And this was title given to the book was Hind Sindh. From there it traveled to Spain. From Spain it went to all the European countries. In fact, that is the foundation of all the astronomical studies and achievements of the European society. This is a sad reflection not only on the Arabs but also on us, we Indians. फाउंडेशन हमारी किताब थी, चांद पे वो पहुंचे. क्यों? हमने उसे मंत्र की तरह लिया, उन्होंने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की. The first half of the 8th century, they translated Indian books. Second part of the 8th century and further on, the letter which Mamun has written to Emperor Justinian, I believe the Academy of Plato, 800-year-old academy, is lying locked, closed, and you have tremendous treasure house of books. Can you give some of these books which are lying in this locked building, can you give some of them to us? जस्टिनियन ने 3 दिन तक काउंसिल की मीटिंग चली और उनका वही एटीट्यूड था जो आज हम अरबों में या मुसलमानों में जनरली देखते हैं. एम्परर जस्टिनियन की काउंसिल 3 दिन डिबेट करती है इशू को और कहती है ये सब काफिराना उलूम हैं, ये थोड़ी किताबें मत दो, सभी नहीं दे दो ताकि ये बर्बाद हो जाए. दिस इज ऑल पेगन नॉलेज. उन्होंने तो ताला डाल दिया था, ये पेगन नॉलेज. वो काफिराना उलूम एक लंबा कारवां ऊंटों का, उस पर किताबें लाद के, और वो बगदाद पहुंचता है. एंड कैन टुडे, जरा आप सोचिए, गौर करिएगा, व्हाट ए वाइब्रेंट सोसाइटी इट इज. फर्स्ट ग्रेट इंस्टीट्यूशन set up by the caliph. Who heads the institution? Hunayn bin Ishaq. Ishaq bin Hunayn. Who is Ishaq bin Hunayn? A Christian. Nobody raised this question. How come in a Muslim country the institution, the only and first institution, is being headed by a non-Muslim? The number 2 position, his nephew. Number 3 position, his own son, who was a scholar of Syriac. This was the dynamism of that society. That's why this period, which is known as the golden period, not known as golden period because of the military victories. This is known as golden period because of the intellectual, academic work which was done during those 250, 300, almost 300 years.
But then Ashari Saab comes on the scene and he says, any study other than Quran and Islamic law is waste of time. And everything comes to a grinding halt. पूरा सब कुछ रुक गया. जब मैंने खुद तय कर लिया कि मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, तो दुनिया में कौन मेरी मदद करेगा? और कैसे इस किताब का आप कह रहे हैं कि नहीं मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा. आपने ये किताब लिख दी, लेकिन बाकी ने तो तय किया हुआ है हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, तो असर कैसे पड़ेगा किताब का? हमारी हदीस की किताबों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खूबी ये थी कि वो रोजाना ग्रेट मोसेस, आई मीन सेम जनरली वी वुड से प्रॉफिट ऑफ द जूज, नो, मुसलमानों के लिए भी वो प्रॉफिट हैं. उन्हें कहते हैं कलीमुल्लाह, वन हु यूज्ड टू कन्वर्स विद गॉड. अब वो जाते थे अल्लाह से बात करने. एक दिन उन्होंने कहा जाके कि या अल्लाह, अगर आप मेरी कौम से नाराज होइएगा तो सब कुछ छीनिएगा, अकल मत छीनिएगा. जी नहीं, अल्लाह ने जवाब दिया उनको. ये हदीस की किताबों में अल्लाह ने उनको जवाब दिया कि मूसा, हम तो जब नाराज होते हैं तो अकल ही छीनते हैं. और कुछ नहीं छीनते हैं, बाकी तो फिर खुद ब खुद चला जाता है. हम तो जब नाराज होते हैं तो हम अकल ही छीनते. हमारे अपने ट्रेडिशन में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि. तो वो तो है कि अब हम अकल ही छीनते हैं. तो मेरा बेसिकली मैं तो समझने से कासिर हूं. और मैं आपको सही कहता हूं, मुझे यहां ऐसे लोग मुझे कहने में, मैं और जगह भी कहा हूं, 1986 में जब हमारी किलर जी ने, और ये बड़ी मजे की बात है कि सर सैयद यहां पे जब एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन शुरू करते हैं तो मुसलमानों में 50 सेक्ट हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी वगैरह वगैरह वगैरह, और सब एक दूसरे के लिए काफिर. सबके फतवे अहले हदीस पर, वहाबियों पर, सब एक दूसरे के फतवे. लेकिन जब कोई ऐसा काम हो जो उनकी फायदे के लिए हो, उसमें टोटल यूनिटी होती जाती है उसकी मुखालफत करने में. सर सैयद ने अलीगढ़ शुरू किया, सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, टोटल यूनिटी थी. ये आदमी काबिले गर्दन जनी है, इसकी गर्दन काट देनी चाहिए. आज की तारीख में उन फतवा 68-60 फतवे थे हिंदुस्तान में, और सब शरीक थे, उसमें एक भी नहीं बचा. और वो एक मौलवी इमदाद अली थे गोरखपुर के, उन्हें इतने पे भी चैन नहीं आया, और वो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा गए फतवे लेने के लिए. 8 फतवे वहां से आए, और उस फतवे में लिखा हुआ था, ये आदमी बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन या तो ये मुसलमानों का दुश्मन है या मुसलमानों के दुश्मनों से मिला हुआ है. मुसलमानों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना कि ये अपने मिशन में कामयाब ना हो सके. और जो साहिब इक़्तिदार मुसलमान हैं, अगर कोई ऐसे मुसलमान है, दोज हु हैव द पावर, उनका ये दीनी फरीजा है कि इसकी गर्दन काटें. नहीं, काट वो सर सैयद की भी नहीं सके, आप इत्मीनान रखिए. तो इसी तरह मैंने 86 में देखा कि टोटल यूनिटी थी. काहे पे यूनिटी थी? अगर 250 रुपए एक मुसलमान डेस्टिट्यूट औरत को, जिसको डिवोर्स के बाद कोई तरीका नहीं है कि वो जिंदा रह सके, अगर उसको 250 रुपए उसके फॉर्मर हस्बैंड से दिलवा दिए तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा. इस पे पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले टोटल यूनिटी थी. सारे मसलक के मौलवी
सब सारे मसलक के मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड में थे। ये दीन, यहां पे जितनी बार अल्लाह की वहदानियत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात है, कुरान में उससे ज्यादा बार जिक्र है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। किस पे खर्च करो? गरीब पे, कमजोर पे, भूखे पे। इनफैक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीने, सारी सीरत की किताबें कहती हैं कि कुबा के पास रुके, कुबा से और जहां आज मस्जिद नबवी है वहां का सफर, 5 जुमले, these books on Sira, they report that he had 5 sentences which he was continuously repeating. And the 5 sentences were, Ya ayyuhan nas afshus salam. O people, spread peace. Now if you ask any cleric today, the words are so absolutely clear, even a person who has basic rudimentary knowledge about Arabic language will translate it like this. Ya ayyuhan nas afshus salam. O people, spread peace. Now if you ask a cleric the translation of this, he will say, O people, spread Islam. If he will ask to spread Islam, he will ask a believer. He was addressing, O people. But they insist that it means spread Islam. O people, spread peace. Ya ayyuhan nas afshus salam wa at'amu ta'am, and feed the hungry. Bhuke ko khana khilao. Wasillul arham, and do your duty towards your kith and kin. Wasallu bil layle wan naso niyam, and bend down in prostration in the night when others are sleeping. The special instruction is not about all these times. The instruction is when others are sleeping, because elsewhere Quran uses the word tazdarruan wa khufyatan. The prayer is done with humility and in privacy. यहाँ पे जब तक शोर ना बचाइए तब तक हमारी प्रेयर है ही नहीं। और उसके बाद लास्ट सेंटेंसेस, ये 4 चीजें कहने के बाद कहा, अन तदखुलुल जन्नत बिसलाम, एंड एंटर पैराडाइज इन पीस। अब इसमें कोई वो चीजें नहीं हैं जो आज दीन का लाजमी हिस्सा बन गई। मैं स्टेट के बारे में मेरे बारे में, देखिए कुरान एम्फेटिकली सेज दैट देयर इज नथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इन दिस बुक। In fact, even if you take one verse that on a particular subject, that should give you the spirit of the message. Now, so emphatically and so clearly in such lucid terms, मैं बहुत दफा गौर करता हूं, जहां, अब पहले मैं इस बात को खत्म कर दूं कि जहां इतना जोर दिया गया हो खर्च करो, खर्च। इनफैक्ट वन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द कुरान सेज दे आस्क यू हाउ मच टू स्पेंड, से व्हाटएवर इज बियॉन्ड योर ओन रिक्वायरमेंट्स। अब मैं खर्च करने का मुझे हुक्म है, कोई इनकार नहीं करता, लेकिन अगर मैंने खर्च कर दिया उस औरत पे जिसको मैंने डिवोर्स किया है, और डिवोर्स के बाद उसके बाद पास कुछ खाने का जरिया नहीं है, और उसने 20 साल मेरे साथ रही है, मेरे बच्चे पैदा किए हैं, उस पर मैंने खर्च किया, तो इस्लाम को खतरा हो जाएगा। वोटे क्या लॉजिक। और जिस पे टोटल यूनिटी थी हिंदुस्तान में क्लर्जी की। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं, ये इस्लामिक स्टेट कानून, हम अल्लाह का कानून, अरे भाई अल्लाह इतने ही मजबूर हैं कि अल्लाह को इसकी जरूरत है कि अल्लाह का कानून आप लागू करेंगे? अल्लाह का कानून अगर है तो अल्लाह को इसमें कोई, मैंने बहुत दफा ये मैं समझाता हूं अपने दोस्तों को, खासतौर से नौजवानों को, कि देखो कुरान क्लियरली कहता है दिस इज नॉट ए बुक ऑफ लॉज, दिस इज ए बुक ऑफ विजडम। ये किताब है जिस किताब में की रोशनी में आप, किताब खुद अपने लिए कह रही है, जहां पर कहा गया कुलना बितू जमिया, जन्नत से कहा तुम निकल जाओ, अब इसके बाद मेरे नबी आएंगे मेरी हिदायत लेके, ये नहीं कहा कुरान में मेरे कानून लेके आएंगे जिन्हें तुम लागू करना, कहा मेरी हिदायत लेके आएंगे, उस पर अगर तुम चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसको वायलेट करोगे तो सजा, दोनों चीजें बता दी। और इस दुनिया को बताया गया है कि दुनिया इम्तहान की जगह है। आपको शौक है कानून लागू करने का, कुरान पे तो गौर करिए, क्या है कुरान। कुरान में तो साफ मेरी इनफैक्ट मैंने कई लोगों से पूछा, भाई मुझे इसका मतलब बता दो क्या है। लिकुल्ली जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, सूरह माइदा की 48वीं आयत। तुम में से हर एक के लिए, हर कम्युनिटी के लिए नहीं, फॉर ईच इंडिविजुअल वी हैव मेड ए लॉ एंड एन ओपन वे। कहीं कुरान नहीं कहता कि हमने तुम्हारे ग्रुप के लिए एक कानून बनाया। कुरान कहता है फॉर ईच इंडिविजुअल वी हैव मेड ए लिकुल्ली जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शा अल्लाह लजअलकुम उम्मतन वाहिदा। अगर हम चाहते, यानी खुदा चाहता, तो हम तुम सबको एक जैसा बना देते। नहीं, इन्होंने तय किया हुआ है, खुदा ने तो नहीं चाहा सबको एक जैसा बनाना, इन्होंने तय किया हुआ है हम सबको एक जैसा बनाएंगे। और रीजनिंग दे दी कुरान ने कि हमने क्यों नहीं बनाया सबको एक जैसा। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, सो दैट वी कैन टेस्ट यू इन दैट विच वी हैव गिवन यू। एब्सोल्युटली क्लियर। Even the taste of human beings is not on a, the standards are not universal and uniform. It differs from individual to individual. You will be tested in what you have been given. I will be tested in what I have been given. Fastabiqul khairat. Therefore, compete with each other in doing good. इसकी फिक्र मत करो कि कौन क्या मानता है, कौन क्या करता है, किसके पास क्या है। तुम अपनी ताकत के मुताबिक कॉम्पीट विद ईच अदर इन डूइंग गुड। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन, देन यू हैव, योर रिटर्न इज टू अल्लाह, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। देन ही अलोन हैज द राइट टू डिसाइड ऑन थिंग्स इन विच यू यूज टू डिफर। अरे बाबा, आज की तारीख में, दुनिया में इन्होंने ऐसा तमाशा बनाया हुआ है, आप जितना लिखें कम है, इससे और ज्यादा किधर। कोई रिलीजियस ट्रेडिशन नहीं है आज दुनिया में जो अकीदे की बुनियाद पे किसी को काबिले गर्दन जनी ठहराता हो। लेकिन यहां जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं, वहां पे हर दिन आप सुनिए तो इस्लाम इंसान को बंदा बनाने के लिए आया था। बदकिस्मती से इस हुकूमत के चक्कर में हम खुदा बन बैठे हैं और हम फैसला करना चाहते हैं। कुरान इतना क्लियर है। मैंने एक बार किसी से पूछा, मैंने कहा भैया इस आयत का जरा मतलब बता दीजिए। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, यू हैव बीन सेंट टू काउंसिल पीपल, सो कीप काउंसिलिंग देम, गुड काउंसिल। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, वी हैव नॉट सेंट यू एज एन एनफोर्सर ऑफ लॉज। प्रॉफिट को तो एनफोर्समेंट करने वाला किया नहीं। ये हमारे यहाँ ये सब जो हैं इनको हक हासिल है कि ये, इनफैक्ट बाद में तारिक साहब ने उसे क्लियर किया तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस बारे में, लेकिन हमारी संध्या जी ने एक बात कही थी, मैं भी लिख के लाया था, कि जहाँ इन्होंने एक जगह कहा भुट्टो के लिए कि लिबरल डेमोक्रेसी भुट्टो सेटअप करना चाहते। मुझे कोई शुबा नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो और बातें उन्होंने गिनाई हैं, ये फैसला कि अहमदिया गैर मुस्लिम हैं, ये भुट्टो के ज़माने में लिया गया। अरे भुट्टो क्या खुदा थे? समझते थे। हाँ, तो फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, डू आई हैव ए राइट टू कॉल समबडी बाय द नेम विच ही हैज नॉट गिवन टू हिमसेल्फ? हु एम आई टू सिट इन जजमेंट? वो कह रहे हैं हम मुस्लिम हैं, हम कहें नहीं, हम तुम्हें मुस्लिम नहीं मानते। मत मानो, लेकिन भाई मानो मत मानो, तुम जानो नहीं मानो, लेकिन तुम कानून बनाओगे। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में सवाल आता है, भी मुझे कोई एतराज नहीं, आप इस्लामिक स्टेट बनाइए। डॉक्टर असरार, मशहूर जमात इस्लामी वाले, दिल्ली आए, मुझे फ़ोन आया, उनके साथ एक साहब आए थे जो मुझसे भी कहीं दूर से रिलेटेड थे। अरे भाई डॉक्टर असरार साहब आए हैं, उन साहब को मिलना चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे क्यों मिलना चाहिए उनसे, मैं तो उनका एडमायरर नहीं हूँ। अरे नहीं यार भाई ऐसी बात मत कर।
अब मैंने ऐसे ही मैंने कहा टालने के लिए मैंने कहा भाई मैं क्यों आऊं, वो हिंदुस्तान आए हैं, खाना खाएं मेरे साथ, अगर ऐसा है तो। मैं समझा टालने की बात हुई, उनका फोन आ गया, हाँ साहब वो आ रहे हैं। अब जब वो आ ही रहे हैं तो मैंने भी 4-6 लोगों को बुला लिया, और ऐसे लोगों को बुलाया चूंकि वो कुरान पे कमेंट्री और इस्लामिक स्कॉलर। मैं हमारे यहाँ क्यू टीवी नहीं आता था, मैं लंदन गया हुआ था, मैं क्यू टीवी देख रहा था। असरार साहब ने, अब ये सुनिए, मतलब इन्हें खुद नहीं पता है कि इस्लामिक स्टेट का क्या मतलब है। ये वो हैं जो प्रोपोनेंट हैं इस्लामिक स्टेट के, खिलाफत कायम करना चाहते हैं। तो मैं लंदन में मैंने वो क्यू टीवी पे इनकी मैं हिज कमेंट्री ऑन कुरान, मैं उसे सुनने लगा। ही वॉज, अब कुरान की कमेंट्री करते करते ही जंप टू मौलाना आजाद एंड टू नेशन थ्योरी, और इतना क्रिटिसाइज किया मौलाना आजाद को। मौलाना आजाद जैसा नाबगाए रोजगार, उन्हें भी ये गलत फहमी हो गई कि हिंदू और मुसलमान मिलके एक कौम बन सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जब मेरे घर आए, खाना जब खा चुके और वो गुफ्तगू चाहते थे, तो मैंने सवाल नहीं किया तारिक साहब, मैंने कहा मौलाना मैंने आपकी कमेंट्री सुन रहा था, मुझे थोड़ा सवाल अपनी कौमियत को लेके, अपनी नेशनलिटी के बारे में मेरे दिमाग में सवाल पैदा हो गया, तो आप ज़रा उसकी वजाहत कर दें। बोले क्या? मैंने आपकी तकरीर सुनी, मौलाना आज़ाद को आपने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, आपने कहा हिंदू और मुसलमान मिलके एक कौम नहीं बन सकते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मेरी नेशनलिटी क्या है इसे, और ध्यान रखिए जवाब देते वक्त कि मैं 51 में पैदा हुआ हूँ, यानी पाकिस्तान बन चुका था, मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं था। हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी कौमियत क्या है, व्हाट इज़ माई नेशनलिटी? बिल्कुल विद एरोगेंस, इस्लाम। ठीक, फाइन। मैंने कहा और आपकी नेशनलिटी क्या है? ही करने लगे। उसके बाद जैसे ही मैंने कहा मुझे आप अपनी नेशनलिटी बताइए क्या है, मैंने कहा आपका तो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, जरा पासपोर्ट निकालिए अपना, देखूं आपकी क्या नेशनलिटी लिखी हुई है। मैंने कहा सऊदी एक खानदान के नाम पे मुल्क का नाम है, एक इंडिविजुअल के नाम पे, वहां के हर आदमी की नेशनलिटी सऊदी है। मिस्र के मुसलमान की नेशनलिटी मिस्री है, इंडोनेशियन वाले की इंडोनेशियन है, और आपका मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था पाकिस्तानी है। जो बचे कुचे हिंदू हैं वहां पे, या कोई सिख बचे हैं अगर, या क्रिश्चियन हैं, उनके पासपोर्ट पे भी पाकिस्तानी लिखा हुआ है। मैं क्या, मैं दुनिया का विचित्र जंतु हूं कि मेरी नेशनलिटी इस्लाम, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी। मैं क्या मौलाना, सिवाय मुनाफिकत के और सिवाय कंफ्यूजन, मैंने कहा वी हैव पेड इनफ प्राइस, फॉर गॉड सेक फॉरगिव अस नाउ। हमने बहुत कीमत अदा कर दी, लेकिन अब आप यकीन मानिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि आगे क्या क्या हुआ। लेकिन जब मैं उन्हें रुखसत करने के लिए गया, मैं आरिफ साहब आपके बारे में बहुत सुना था भाई, आपका मुताला तो बहुत है, लेकिन भाई थोड़ा अपना जाविया बदलिए। तो मैंने कहा जाविया ये बदलूं कि सोचना छोड़ दूं, बगैर क्वेश्चनिंग के आपकी बातों को मान लूं, ये जाविया बदलूं? अरे मैंने क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सीरत की किताबें पढ़िए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने नहीं गए हैं स्टेट कायम करने के लिए। मक्के में लाइफ वॉज मेड हेल फॉर हिम, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु हैड प्लेज्ड एलिजियंस टू हिम, हु हैड बिलीव्ड इन हिम, इवन टू ऑफर प्रेयर्स। खुद तो जब मक्के से बाहर निकले हैं तो सबसे ऊंची 3 दिन बाद गार में छुपने के बाद जब निकले तो सबसे ऊंची चोटी पे खड़े होके एक नजर डाली है मक्के की तरफ, और सीने पे हाथ रख के कहा है, एक आह भरी, और सीने पे हाथ रख के कहा मैं तुझसे, मेरा बर्थ प्लेस है, कहा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मगर मैं क्या करूं, तेरे फर्जंद मुझे यहां रहने नहीं देते। वो छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, उन्हें स्टेट एस्टेब्लिश ना उनके मिशन में था, ना उनको, आपने, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, नो वेयर इन कुरान, नो वेयर इन हदीस लिटरेचर दिस हैज बीन मेड एन ऑब्लिगेशन ऑन ए मुस्लिम। और वहां कब गए हैं ये, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हजरत सुहेब जो उनके एनवॉय थे मदीने में, आफ्टर 2 and almost half years he writes a letter to him saying, now
And these words are very important. Now the majority of Madinites have pledged allegiance to you on my hand. He did not leave Makkah, he did not land in Medina unless he was told that now majority, they have pledged allegiance to you. The majority आ गई. जो उन्होंने गवर्नमेंट कायम की उसमें वो कुरान से नहीं अथॉरिटी ड्राइव कर रहे थे, उसमें वो ड्राइव कर रहे थे अथॉरिटी फ्रॉम द कंपैक्ट विच वाज साइंड बाय वेरियस ट्राइब्स ऑफ मदीना. एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट that in that compact, the constituent units of that compact are not Muslims and non-Muslims. This is again very important. The compact, the constituent units of that compact, which has been described by some as the first constitution, मीसाक मदीना, उसमें constituent units कौन है? कुरैश के जो लोग आए थे वो तो मुसलमान थे. मदीने में अंसार में जो लोग मुसलमान हो गए थे तो कहा जा सकता था दिस इज अ कॉम्पैक्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड द जूस एंड द पेगन्स. नो, इट सेज क्लियरली कॉम्पैक्ट बिटवीन दोज द माइग्रेंट्स हु आर फ्रॉम मक्का. इट डज नॉट टॉक ऑफ मुस्लिम्स एंड द ट्राइब्स ऑफ द अंसार, दे आर नेम्ड बाय ट्राइब्स एंड द जूस आर नेम्ड बाय द ट्राइब्स. एंड फ्रॉम दैट इन विच ऑथोरिटी वॉज गिवन टू द होली प्रॉफिट. From that, he was driving his authority. That हमें सोसाइटी को, एक सिविलाइज सोसाइटी को चलाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेगा? वो इंस्ट्रूमेंट बनेगा लोगों के एग्रीमेंट से, जिसके ऊपर लोग एग्री कर लें कि इसको हम अथॉरिटी दे रहे हैं, डेलीगेटेड अथॉरिटी. इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रूलर का नाम खलीफा दिया गया. Khalifa is not the word which has been used by Quran for the Muslim ruler. Khalifa is the word which has been used by the Quran for the children of Adam, which includes everybody. लेकिन उसको ये, to make him conscious of the fact that this person who is the ruler is not a sovereign, he is merely exercising delegated authority, to make him conscious of the fact. लेकिन नाम खलीफा किया, और साहब खलीफा तो छोड़िए, वो सर सैयद ने जो लिखा है, बन गए मालिक रकाबुल उमम. रकाबुल उमम समझे आप? गर्दनों के मालिक, जिसकी चाहे गर्दन उड़ा दो. यू हैव नॉट बीन डेलीगेटेड दिस पावर टू किल समबडी. तो आप, आई मस्ट से, मैं इसे खत्म कर रहा हूं, और आई मस्ट से दिस इज ए ग्रेट बुक. आई एम ग्रेटली एंजॉइंग रीडिंग दिस बुक, और मेरी बेस्ट विशेज आपके लिए हैं. और मैंने कहा, पहले आपको कहा कि असर नहीं होने वाला, दुआ यह है कि कुछ असर हो जाए. शुक्रिया, खुदा.